think Vishal sir start करेंगे तो बेहतर है क्योंकि he is going to talk about this topic. Then we'll come to the song. Yeah. This World Digital Decom Day, which is supposed to be the 10th of December. So we happen to meet like the president for India is Mrs. Rekha Chaudhary, and she is the pioneer here about the entire topic of world digital rights. And we happen to speak once we were just having a casual talk, and suddenly she said, "Why are you looking into your phone?" I was talking to her, and every 2 minutes I was in the phone. This is the problem. Like we are not able to convey what we want to convey. And this is, I immediately identified when I was going through certain phases where this was the actual problem. And that's when she said, okay, let's write a song for Digital Detox, because she's been doing it for the last 5-6 years, 7 years. So she's like, I really want it to go to the educated mass, and the entire state, the school guys, the retired people, everybody has to, because so I'm a doctor by practice. So she's like, see, this is everywhere. Like right now, you saw what happened. So, and I was really quick by that idea. And that's how I spoke to Satish, and then we decided we should go for a song. Though it is into a romantic genre, but we purposely made that because people are, especially in India, they're more into Bollywood songs. You cannot just make a song which doesn't appeal to them if you want to convey a message. So that's how we went for a romantic song. The words which actually signify what we are trying to show in the video about digital detox. And I did share the song with her as well, and she was pretty okay with that thing, and so we went ahead with it. But the whole idea creeped into us when she actually discussed about it. So she's the right person to question. It was really nice because for me, because any song recording makes my day. But when you get such a lovely concept associated with the song, and this idea of digital detox, it resonates with me, with my generation very much, because we are falling prey to digitization very, very often. Even people like me, like a few weeks back, I unfollowed everybody on Instagram because I was constantly scrolling and seeing things, seeing content, consuming unnecessary information which I don't require. So it's very, very important that we take some time off the internet and off our gadgets and take care of ourselves. It's not, it's हाँ जी, हिंदी में भी बात किया जा सकता है। हिंदी में बोल वापस पूरी चीज़ फिर से हिंदी में कंटिन्यू करें। तो हमारी जो पीढ़ी है, मैं यही बोल रही थी कि हमारी जो पीढ़ी है इस आइडिया के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत खुशी है इस बात की, गर्व है कि मुझे ऐसे एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का मौका मिला, थैंक्स टू द कंपोजर सतीश चक्रवर्ती सर। एंड मुझे लगता है कि मेरे लिए और भी सेकेंडली बहुत खुशी की बात ये है कि सतीश जी के साथ मैं आई थिंक 5-6 साल के बाद वापस मुझे उनके लिए गाना गाने का मौका मिला, इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। Same for me. बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की वर्ल्ड में, बिकॉज डिजिटाइजेशन इज टेकिंग अप हमारे इतना टाइम हमारे ज़िंदगी का वो ले जा रहा है विदाउट अस रियलाइजिंग, बिकॉज हमें एंटरटेनमेंट मिलता है उसमें। सो वी डोंट रियलाइज हाउ अनफेयर वी आर बीइंग टू आवर स्पाउसेस, our parents or grandparents or children or anybody, any relationship for that matter. So इसलिए ये गाना एक emotional song है, even though the tune is in a romantic genre, एक emotional गाना है because a lot of emotions that are being trampled upon because of digital addiction is what we are trying to talk about. मेरा सवाल विशाल सर और शक्ति सर को है कि युग के ऊपर युग कैसा असर करेगा या ये यूथ के लिए है स्पेसिफिकली, दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स अ रोमांटिक जॉनर में है सॉन्ग। ऑल्दो ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल एडिक्शन, बट नॉट जस्ट दैट, एवरी रिलेशनशिप दैट यू हैव, वेदर इट इज विथ योर चिल्ड्रन और एंड स्पेशली ये यंगर जनरेशन के लिए
जो उनका फॉर्मेटिव ईयर्स है 10 से 16 साल के बीच में जो टाइम है, वो जो 6 साल का टाइम है, तभी मेरे जनरेशन में ये इतना डिजिटाइजेशन नहीं था, तो म्यूज़िक सीखने को एक चांस मिला। एक प्रॉपर स्टूडेंट स्टडीज़ में कंसंट्रेट करने को, म्यूज़िक में कंसंट्रेट सीखने के टाइम में ये डिस्ट्रैक्शन नहीं था। बट नाउअडेज क्या हो रहा है, हर दिन में 3 घंटा एक बच्चे के लाइफ से ये डिजिटल मीडिया एडिक्शन कंजम्पशन takes it away. So that 3 hours is the most important time of their lives. और फिर छोटे बच्चे भी आजकल जब तक यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखते खाना नहीं खाते। It's very bad for the Small brain. kids, छोटे बच्चे वीडियो दिखाओ तो खाना खाओ। एक ज़माने में इंटेलिजेंस जो होता था उसको अपग्रेड करने के लिए हम वीडियो देखते थे, आजकल वीडियो अपना इंटेलिजेंस अपग्रेड करता है। सो इट इज अ ट्रेन्ड इंटेलिजेंस, इट इज नॉट इंटेलिजेंस। प्लस ये सॉन्ग इज मोर ऑफ विजुअलाइजेशन। सो दैट्स व्हाट रेखा जी ने कहा कि इसको ऐसे बनाना है कि इट हैज़ टू बी, ये सब ने अप्रिशिएट करना चाहिए हर एक ग्रुप में। सो इसको रोमांटिसाइज वर्डिंग से लिखा है, बट वो वर्डिंग से एक्चुअल मीनिंग जो है वो वीडियो में आएगा। जो डिजिटल का जो इफेक्ट है ये वीडियो के थ्रू जाता है। इट्स ऑडियो विजुअल, इट्स मोर ऑफ ऑडियो। तो छोटे बच्चे जो लेते हैं वो सब ऑडियो वीडियो में जितना देखते हैं वो पहले एक्सेप्ट करते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू शो द एंटायर मैसेज वीडियो के माध्यम से। इसलिए सॉन्ग रोमांटिक लिखा है बिकॉज बॉलीवुड इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस आज के तारीख में, एंड द वीडियो विल गिव द एक्चुअल मैसेज अबाउट इट। एंड it was her idea again. Sorry, it was his idea again. I think now we should give the stage to the No, I'm founder of liking the. it. In fact, I'm liking to listen from you guys. So it's a good thing. Yeah. So I want to go directly on the subject. Mental health. अच्छा, मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा इशू बन चुका है। डिप्रेशन लेवल, एंजाइटी, आप आजू बाजू आपकी तरफ सब जगह पे देखोगे तो नज़र आता है। ज़्यादातर ये 2 लोगों के बीच में नज़र आ रहा है, एक यंगस्टर्स के बीच में और एक ज़्यादा ओल्ड साइज जो होगी 60 अबाउट, इनके इसमें आप अगर देखोगे तो ये पिक्चर आपको ज़्यादा नज़र आएगा। हमारे एज के लोग हैं वो ट्रांजैक्शन मोड में हैं, जिन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों दुनिया देखी है। तो ऑफलाइन से ऑनलाइन आते हुए अचानक से वो कुछ आगे आ गई, जिसको ज़्यादा खाने की आदत लोगों को पड़ गई है। तो ये डिजिटल का कंजम्पशन का एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कंजम्पशन हो रहा है। आवर मेंटल हेल्थ इज़ कम्प्लीटली डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस ओवर कंजम्पशन। और आप देखोगे कि आदत ऐसी हो चुकी है कि कभी कभी लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि वो एडिक्शन उनके लिए बढ़ गया है। जैसे डॉक्टर ने बताया कि मैं सामने बैठी हूँ और 2-3 बार उनका ऑलरेडी स्क्रोल अप एंड डाउन हो चुका है, और बहुत सारे रीज़न है उनके। चलो वो तो एजुकेटेड पर्सन है, इमीडिएटली उन्होंने किसी ने बताया, उन्होंने अडॉप्ट किया और वो इम्प्लीमेंट भी किया। पर बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है कि उनको देख के भी सामने समझ में नहीं आ रहा है। तो सॉन्ग इज़ वन ऑफ द मीडिया वेयर यू कैन डायरेक्टली रीच टू द हार्ट टू द अदर पर्सन, और दैट्स हाउ वी डिसाइडेड। उसी के लिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग सॉन्ग के माध्यम से सब जनरेशन, सब लेवल के जनरेशन के पास में, सब लेवल के लोगों के पास में जाएंगे, यंगस्टर से लेके एज ऑफ 60-70। क्योंकि हमारा एक कहना है एज ऑफ 70 के ऊपर के जो लोग हैं वो भी इतने पहले जो दादा दादी थे घर में बातें करते थे, अभी वो भी मोबाइल में कॉन्स्टेंटली बिजी हो चुके हैं कि उनके लिए एक नया खिलौना आ चुका है। जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बुढ़ापा जो आता है वो छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। तो छोटे बच्चे और वो मीन्स यंगस्टर्स, ये जनरेशन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं, जो हमारा रिसर्च बता रहा है। उसके अलावा जो नए न्यू मदर्स है जिनको पता ही नहीं है कि बच्चों को सामने मोबाइल रख के खाना खिला रहे, उसके वजह से होने वाले जो ब्रेन डेवलपमेंट पे परिणाम जो है उसका भी रिसर्च हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स ये मिशन है, ये मिशन 7 साल पहले शुरू हुई थी। डिजिटल डिटॉक्स का जो वर्ड था बहुत नया था उस टाइम पे, अभी ये फैशनेबल वर्ड हो चुका है। लोग बोलते हैं कि हम लोग डिजिटल डिटॉक्स लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं ले पा रहे क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ चुका है। एक साइड में मोबाइल पड़ा है, दूसरे साइड में लैपटॉप पड़ा है, सामने टीवी है, एक साइड में वापस अपना कंप्यूटर पड़ा है। ऐसे इसमें इर्द गिर्द वो लोग टेक्नोलॉजी के बीच में सो रहे, खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे। सो दिस इज़ रियली हार्मफुल फॉर द ब्रेन बिकॉज टू मच इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गुड फॉर द ब्रेन विच इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल द प्लेसेस।
So your brain needs some time to settle down, your body needs some time to just relax, your mind needs some time to just go away from everybody and उनको अकेले कुछ एक खुद का जो टाइम है वो उनके पास अभी बिल्कुल भी बचा नहीं, जो ज़रूरत है। ये नेचर ने हमारी बॉडी बनाई है, नेचर ने बॉडी इसीलिए बनाई कि बॉडी माइंड एंड सोल हैज़ टू बी अलाइन विथ योर ईच एंड एवरी लाइक व्हाट आई वुड से कि आपका बॉडी और माइंड और सोल एक दूसरे से अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो हो नहीं पा रहा है क्योंकि बॉडी कुछ सोच रही है, एक्शन कर रही है, माइंड कुछ सोच रहा है और सोल तो उसके ऊपर और जो भी एक्शन रिएक्शन के ऊपर उनका ये हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट डिजिटल डिटॉक्स व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाट वी आर सेइंग 7-8 स्टेप्स व्हाट वी हैव गिवन। जो 7-8 स्टेप जो है सिंपल स्टेप्स है जो आप घर में डे टू डे के लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ये डिजिटल डिटॉक्स का मिशन या मतलब ये नहीं है कि आप कम्प्लीटली आप मोबाइल फ़ोन से या तो आपके व्हाट्सएप से या सोशल मीडिया से आप लोग दूर चले जाए। हम लोग यही बोल रहे कि फास्टिंग जो करते हैं हम लोग, फास्टिंग किसके लिए, बॉडी को कुछ बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है उनको हम लोग कुछ टाइम के लिए कुछ ब्रेक देना चाहते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स वो काम कर रहे हैं। वही अपना अगर बॉडी और माइंड अगर कॉन्स्टेंटली कंजम्पशन के ऊपर डिजिटल एक्शन के ऊपर काम करे तो उसका परिणाम बहुत अलग हो सकता है। इसके लिए डिजिटल फास्टिंग की जो कॉन्सेप्ट हमने 7 साल पहले शुरू की थी वो वही बता रहा है कि कुछ समय के लिए, हम लोग नहीं बोल रहे कि कम्प्लीटली आप उसके अगेंस्ट चले जाए क्योंकि वी आर इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हम लोग को टेक्नोलॉजी से दूर रह के भी नहीं चलेगा क्योंकि दैट विल कम अंडर द इलिटरेसी कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी तो सीखना ही सीखना है, लेकिन हेल्दी वे यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो important for you, for your own body, for as an individual person as well as for the society and for the family। जैसे सतीश सर ने बताया कि हमारे पॉज के लिए जिनके लिए वो भी एक फैमिली में एक ऐसा पिक्चर आपको नज़र आता है जहाँ पे डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे हैं लेकिन कम्युनिकेशन कम्प्लीटली बंद हो चुका है क्योंकि एवरीवन इज़ बिजी ऑन द फोन, समवन इज़ टेकिंग फोटो ऑफ द फूड, समवन इज़ टॉकिंग विद समबडी एल्स जो सामने भी नहीं बैठा है लेकिन वो कुछ डिस्टेंस पे बैठा है, वो पर्सनालिटी आपके लिए बहुत पास में आ जाती है और जो सामने बैठे हुए अपने रिलेटिव है दूर चले गए। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के एक्सेस यूज़ की वजह से हो रहा है जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं। तो हम लोग बोले कि आपको डिजिटल एथिक्स, डिजिटल मैनर्स एंड डिजिटल एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है कि कंजम्पशन कौन से तरीके से आपको करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमने छोटे छोटे थीम्स जो लगाए, जो आर्ट मैनिफेस्टो बताए, आर्ट मैनिफेस्टो में हम लोग यही बोल रहे ओवरऑल फैमिली वेलबींग के बारे में बोले और इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बोले। एक छोटे से ऐसे भी हमने जो डिज़ाइन किए हैं उसमें हम लोग बोल रहे कि टर्न ऑफ और ट्यून इन। टर्न ऑफ मीन्स कम्प्लीटली आपके पास जो डिवाइसेस है उसको कम्प्लीटली बंद कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, और ट्यून इन मीन्स आपकी बॉडी, आपका माइंड कुछ डिमांड कर रहा है उसको सुनो, आप कुछ सुनो। आपके वेलबींग के लिए वो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको सुनना ज़रूरी है आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब ऑटोमेटिकली आपके वेलबींग की लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, आपके थॉट प्रोसेस बहुत बढ़ेगी। जो मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम जो सोसाइटी में चल रहे हैं और कंजम्पशन की वजह से डिप्रेशन चल रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे फॉलोअर्स कम हो जाते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके ऊपर के डिप्रेशन से। दैट इज़ सो बैड। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि उनको एडमिट किया है हॉस्पिटल में, उनको ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़कियां हमने देखी है जिनको बेड पे बांध के रखा है। इट्स सो बैड इट्स सो। कहाँ पे हम लोग पहुँच जा रहे हैं, हम लोग कहाँ पे, हमारा ह्यूमैनिटी कहाँ पे जा रहा है, हमारा खुद का हेल्थ का हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो ये जो है सब रियलिटी है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। ट्रांजेक्शन मोड में जहाँ से ऑफलाइन से ऑनलाइन जो हम लोग जा रहे हैं, सो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, जो एडॉप्ट करना है हमें कौन से तरीके से ये नया जो टेक्नोलॉजी का जो ये युग आया है उसको हम लोग एडॉप्ट करें। जब हम लोग AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन लाइफ में डिफरेंस क्या है, तो एक इमोशनल का डिफरेंस है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इमोशनल आ जाए, वो भी अपने जैसे रोने लगे, वो भी अपने जैसे हंसने लगे, तो इंसानियत में डिफरेंस कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये जो है इमोशनल हम लोग ये सॉन्ग के माध्यम से सबके पास में पहुंचाना चाह रहे हैं। यही वजह थी कि हमने सॉन्ग डिज़ाइन करने का डिसाइड किया एंड आई एम सो ग्लैड दैट इज़ आई गॉट सच अ ग्रेट टीम ऑन बोर्ड। सतीश जी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। Anvesha, I am really thanks to you and my friend. He has really
hold my hand to take this step. So I'm He really is the thankful. person who brought us all together. Yes, Yes, yes. all thanks to him. So yeah. all thanks goes to him Very also. He has done the really beautiful job, and this is the message what we are giving. Turn off and tune in, and let's get real is the message for the social media users who is लिविंग ड्वेल लाइफ, डबल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनका अवतार एक अलग है और एक्चुअल में लाइफ उनकी अलग है। और कभी कभी ये डबल लाइफ जीने में, क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ ग्रीन नज़र आता है, ग्लैमर नज़र आता है, सब कुछ अच्छा ही नज़र आता है, फिल्टर से जहाँ पे आपको ब्यूटीफुल बनाया जाता है। एक्चुअल में ऐसे बहुत सारी चीज़ें रियलिटी में सिस्टर और ब्रदर के अंदर होने वाली चीज़, क्योंकि सिस्टर ने नाम छुपाया हुआ है, ऑनलाइन उसने कुछ डेटिंग किया है और एक्चुअल में मिलने जाते हैं तो सामने ब्रदर नज़र आया है। ये तरीके से भी किस्से सामने हमारे आए हुए हैं और ये बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, बहुत अलग दिशा में ये सब कुछ जा रहा है, जहाँ पे रोकना बहुत ज़रूरी है। 4 साल की लड़की है जो कॉन्स्टेंटली उसको मोबाइल दिखाया गया है, बचपन से कॉन्स्टेंटली मोबाइल दिखाया है, खाते हुए सोते हुए जो भी टाइम मिला है, मदर को लगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तब तक उसको मोबाइल दे दूँ। उसने मोबाइल कॉन्स्टेंटली दिया है और वो बच्ची को बात करने बिल्कुल नहीं आ रहा है। 4 साल तक बात नहीं, कम्युनिकेशन स्किल ही भूल गई है बच्ची, जहाँ पे डॉक्टर के पास जाने के बाद वापस उसका थेरेपी शुरू हो रहा है। ये सब एक्चुअल एग्जाम्पल्स है जो हमने रिसर्च करते हुए हमें हमारे सामने आए हुए। हम लोग उनके नाम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स है मेरे सामने के पहचान के एक फैमिली है, ऑनलाइन गेमिंग में जो भी है उनको समझ में नहीं आया, जितने पैसे उनके चले गए कुछ समझ में नहीं आ रहा है और पूरा का पूरा फैमिली ने सुसाइड किया है। 16 साल का एक बच्चा है जिसने फॉलोअर्स के वजह से सुसाइड किया। ये सब कुछ हमारे पास में रियल इसमें है, स्टडी में है और नाम के साथ में, फैमिली के साथ में। ओनली द प्रॉब्लम इज़ दैट वी कांट डिक्लेयर बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। एक ये आ जाता है, स्टेटस आ जाता है, राइट? या नो दैट यू कैन ऑल्सो शेयर दैट। वी वर स्पीकिंग अबाउट इट एंड एक बुजुर्ग ने सुसाइड किया था क्योंकि किसी और ने उनके मोबाइल में कोई फिल्म देखी, तो घर के फैमिली के कोई होगा, घर के फैमिली उन्होंने जब अपना मोबाइल ओपन किया तो लोगों के सामने खुल गया मोबाइल, उनका नाम उसमें आ गया। तो ऐसे भी केसेस में उनकी भी सुसाइड हुई। सो एल्डरली पर्सन डूइंग दिस, किसी और ने लिया है, किसी और ने किया, तो हिस्ट्री में इट्स ऑल देयर इन द हिस्ट्री। सो ऐसे भी केसेस है। सो ये कोई बोलता नहीं है कि घर में ऐसे कब हुआ है, क्यों हुआ है। सो शी इज़ द राइट पर्सन टू एड्रेस। तो जब इन्होंने कहा दैट्स राइट, हमने जो गाना लिखा है वो पल लिख पल और कल लिख पल ऐसा ही लिखा है इसको। तो उसका लिखने का रीज़न ये होता है बिकॉज हिंदी में आप डिजिटल को हिंदी में क्या बोलेंगे, गाने में तो पल, हर पल एक पल। तो हमने ये गाना मैंने वैसे लिखा है और सभी जी ने बोला कि दिस इज़ द राइट वे टू डू इट, एंड देन आई समाउ शोड इट टू हर, और उन्होंने इमीडिएटली एग्री किया कि दिस इज़ द राइट वे टू गो टू द सॉन्ग। बट ऑल द केसेज व्हाट शी हैड सेड, शी इज़ राइट कि वो किसी की प्राइवेसी या नाम डिटेल्स बता नहीं सकती, तो ये प्रॉब्लम है और ये बढ़ते जा रही है। सो दैट्स व्हाई शी हैज टेकन अ स्टेप। सो 10 दिसंबर उन्होंने अरेंज किया हुआ है फॉर डिजिटल वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे, बट समहाउ 5 दिसंबर को ये प्रोग्राम होगा, प्री सेलिब्रेशन होगा। तो 10 दिसंबर इज द डे व्हेन दिस विल बी सेलिब्रेटेड एंड द सॉन्ग विल बी ऑफिशियली रिलीज्ड एज अ थीम सॉन्ग। ये गाना थीम सॉन्ग रहेगा इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, राइट? या इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो ओवरऑल मैं इंडिया को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करती हूँ और जितने भी कंट्रीज़ के साथ में हूँ, अभी वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स 65 कंट्री में ऑलरेडी पहुँच चुका है और ये थर्ड ये है कि हम लोग 65 कंट्रीज में अभी पहुँच चुके हैं। वजह यही है कि मैं ग्लोबल एज अ वेलनेस एम्बेसडर में बहुत साल से काम कर रही हूँ और मेरा एक ही यही था, उद्देश्य था ओवरऑल तभी कि इंडिविजुअल्स वेलबींग इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एक इंसान अगर वो खुश है, वो उसका हेल्थ अच्छा है, तो उसका मतलब वो फैमिली अच्छी है, फैमिली अच्छी तो सोसाइटी अच्छी है। ये पुराने टाइम से हम लोग बोलते हैं कि हेल्दी माइंड ब्रिंग्स द हेल्दी थॉट्स फॉर द फैमिली एंड फॉर द सोसाइटी। पर यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस आ चुका है इतना सारा, तो वेलनेस में यही हम लोग बोलते हैं बॉडी माइंड सोल, ये तीनों को क्लीन करने के लिए या फिट रखने के लिए आपको जो
बताया जाता है हमारा 3 मंकी का कॉन्सेप्ट जो है आपने वो बताया क्या फिर नहीं बता that also we should be talking because that is 3 monkeys concept we are changing now. We are actually Exactly. changing that concept. जो डार्विन थ्योरी है Right. इसमें बताया कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है और ह्यूमन फिर से उसी फेज में जा रहा है तो एंटायर बॉडी सोचता है कि वैसे ही होते जा रहा है दैट इज हाउ वी आर वर्किंग इट आउट इंटरेस्टिंग so that's the video for the English song which will be planned next. So ये गाना इंग्लिश में भी आ रहा है which she already has approved to the song. उस गाने का जो वीडियो होगा it will be the song will be in 3-4 languages, French, Spanish, English as well. And वीडियो कॉन्सेप्ट कॉमन होगा सिर्फ हिंदी के लिए इंडिया के लिए शी सजेस्टेड कि यू शुड हैव अ हिंदी वीडियो जैसे आप कह रहे थे कभी हिंदी में बात करेंगे तो हाँ तो इन्होंने स्पेशली वो पहले ही सोच के रखा था कि हिंदी गाना चाहिए सो दैट्स वी हैव कम अप विद दिस लेकिन हिंदी गाना का जो वीडियो होगा वो इंडियन पॉपुलेशन के लिए अपील करने लायक होगा सो इट विल बी लेस ऑफ एनी एंटी में इस साल का पर्सनल कनेक्शन सो पर्सनल कनेक्शन व्हाट वी आर डूइंग इज राइटिंग द लेटर टू प्राइम मिनिस्टर अबाउट ब्रिंगिंग द अवेयरनेस अबाउट द डिजिटल डिटॉक्स के लिए अवेयरनेस के लिए हमने सबने मिलके सबको एनकरेज कर रहे हैं और कम से कम 4 से 5 लाख लेटर्स प्राइम मिनिस्टर जी को जा रहे हैं और हर एक कंट्री से जा रहे हैं हर एक कंट्री से सब लोग लेटर लिखने वाले पोस्ट कार्ड में जाके पोस्ट कार्ड पे लिख के पोस्ट कार्ड में उसको ड्रॉप करने वाले हैं सो दिस इज द पर्सनल कनेक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू डू Thank you.